Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Maths Cafe. In my last video, I have explained exercise 1.2 of chapter 1 number system. In this video, I am going to start exercise 1.3. So our first question of exercise 1.3 is write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. ये जो भी हमें रेशनल नंबर्स दिए हैं हमने इनकी डेसिमल फॉर्म निकालनी है. मीन्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है 36/100 तो हमने 36 को 100 से डिवाइड करना है और उसके बाद जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आती है उसके टाइप क्या है वो हमें बतानी है. राइट. तो सो वी स्टार्ट फ्रॉम पार्ट नंबर 3 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. हियर पार्ट नंबर 3 इज 4:1/8. 4:1/8 is equal to 33/8. मीन्स वी हैव टू डिवाइड 33/8. तो हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे. यू नो हाउ टू डिवाइड दिस. यू हैव लर्नड इट इन जूनियर क्लासेस. 33 divided by 8. So here remainder is 0 and quotient is 4.125. So here we write our remainder is equal to 0. If our remainder is equal to 0, it means this decimal expansion is terminating decimal. मीन्स ये जो एक्सपेंशन है हमारी वो टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया. हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन जो है इधर 5 पे ख़त्म हो जाती है. 4.125. तो हमारा एक्सपेंशन कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आया. जिस भी केस में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो वो एक्सपेंशन कैसे होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल. राइट. तो अब हम लेते हैं पार्ट नंबर 1. 36 divided by 100. There is no need to do long division. 36 divided by 100. We can write it in the decimal form. We can write it as 0.36. 2 zeros हैं तो पीछे से हम 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाते हैं. 0.36. अगेन इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ख़त्म हुआ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये. नाउ पार्ट नंबर सेकंड इज़ 1/11. मीन्स वी हैव to divide 1/11. When we divide 1/11, we get remainder is not equal to 0 and quotient is 0.090909 going on. Means it is non-terminating because remainder is not equal to 0. So decimal expansion is non-terminating. But in quotient we see our answer is 0.0909 means this block 09 is repeating. So decimal expansion is non-terminating but रिपीटिंग, क्योंकि हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी रिपीट ना हो रहा हो. तो आप जब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारा ब्लॉक जो है 09 का वो रिपीट हो रहा है. सो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. सो 1/11 कैन बी रिटन एज 0.09090909 एंड सो ऑन टू. इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 0.09 बार. जो ब्लॉक हमारा रिपीट होगा उसके ऊपर हम क्या निशान डालेंगे? बार डाल देते हैं. इट मीन्स दिस ब्लॉक इज रिपीटिंग सो मैनी टाइम्स. सो डेसिमल एक्सपेंशन इज हियर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. Now fourth part is 3/13. When we divide 3/13, after some steps we get again 3. Means इतने स्टेप्स के बाद 1 2 3 4 5 स्टेप्स के बाद फिर से हमारे ये 5 स्टेप चलेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 स्टेप्स चलेंगे, फिर 3 आ जाएगा. मीन्स रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड क्वोशंट इज 0.230769 एंड सो ऑन टू. व्हेन वी डू this sum further we again get 0.230769 230769 230769 means a block of 6 digits 230769 is repeating so many times. So 3/13 can be written as 0.230769 bar. It means this decimal expansion is non-terminating. Non-terminating का मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा, because remainder is not equal to 0. So it is non-terminating.
but repeating because this block of digits 2307669 is repeating so many times, so expansion is non-terminating but repeating. Now fifth part of this question is 2 by 11, and when we divide 2 by 11 we get 2 as remainder, means after 1 2 3 4 steps we get the same question, means we have to again divide 2 by 11, and our answer is 0.18181818 and so on to, means this decimal expansion is non-terminating but repeating. Which block is repeating? 0.18. So 2 by 11 can be written as 0.18 बार. तो हमने 18 के ऊपर बार लगा दिया क्योंकि 18 ये बार बार रिपीट हो रहा है. Now I am doing question number 6. Question number 6 is look at several examples of rational numbers in the form p by q. p by q की form के rational numbers के examples लो where p and q are integers with no common factor other than 1. ये हमें condition किसकी given है? rational number की. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, हमने वो रैशनल नंबर्स लेने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो? टर्मिनेटिंग हो. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए हैं पार्ट्स में जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन क्या थी? टर्मिनेटिंग. तो वही पार्ट्स अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? आप बताइए कि जो क्यू है, जो रेशनल नंबर है कौन सी फॉर्म में होता है? p अपॉन क्यू, मीन्स न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. तो जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये हमें बताना है. राइट. तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्वेश्चन नंबर 1 के वो 3 पार्ट्स ले लेते हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग आई है. एक पार्ट लिया हमने 36/100, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई? 0.36. एक हमने पार्ट लिया 4:1/8, 33/8 एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज 4.125, एंड लास्ट पार्ट दैट वी हैव टेकन इज 329/400 which is equal to 0.8225. In these 3 parts the decimal expansion is terminating. So now we have to check what property Q satisfies, means what property this denominator satisfies. And here in part number 1 denominator is equal to 100, and 100 can be written as 25 into 4. 25 can be written as 5 raised to the power 2 into 2 raised to the power 2. Right. Next, in this part here denominator is 8, and 8 can be written as 2 into 2 into 2, which is equal to 2 raised to the power 3. And in last part, third part, our denominator is 400, and 400 can be written as 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, means 2 raised to the power 4 multiply 5 raised to the power 2. Now what is common in all these parts? We see the prime factorization of Q must have only power of 2 or power of 5 और बोथ, कि जो हमारे रेशनल नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, अगर हम एक्चुअल डिवीज़न ना करके ऐसे ही चेक करना चाहें कि कौन से रेशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं. डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या हो? पावर ऑफ 2 या फिर पावर ऑफ 5 या फिर बोथ. अगर ऐसा होता है तो हमारा रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी. अब हमने देखा इन तीनों पार्ट्स में हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या आई है? पावर ऑफ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी पावर ऑफ 2 है, थर्ड पार्ट में पावर ऑफ 5. So these 3 rational numbers have terminating decimal expansion. Now question number 2 is, you know that 1/7 is equal to 0.142857 bar.
Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actual doing the long division? If so, how? Here it is given that 1 by 7 is equal to 0.142857 bar, and we have to find the value of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 without actually doing. So first of all, we divide 1 by 7 and we get it is equal to 0.142857, means it is non-terminating and repeating, non-terminating but repeating. And what is repeating here? The block having 6 digits 142857. Now 2 by 7 can be written as 2 multiply 1 by 7, which is equal to 2 multiply, what is the value of 1 by 7? It is given 0.142857 bar. Here we simply multiply 2 by 0.142857. We get 0.285714 and we put bar on the last 6 digits. So it is the decimal expansion of 2 by 7. Here without actual division, without long division, we got the value of 2 by 7. Similarly, we can find the value of 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7. For example, in 6 by 7 we can write 6 by 7 is equal to 6 multiply 1 by 7, which is equal to 6 multiply, here we put the value of 1 by 7, 0.142857, we multiply it by 6 and get 0.857142, then we put bar on the last 6 digits, so we get 0.857142 bar. In this way we got all the values of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7 and 6 by 7. Now question number 3 is express the following in the form P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. In question number 3 we have given the decimal expansion and we have to convert it into rational form, means rational number. So first part of question number 3 is 0.6 bar. Here we adopt a procedure, let x is equal to 0.6 bar. 0.6 bar means 0.66666 and so on to. We mark it as an equation 1. ये हमारी equation 1 आई. अब हमने क्या ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में कि हमारा जो यहाँ बार गिवन है वो कितने डिजिट्स पे है, 1 डिजिट पे है, तो मीन्स हम इस इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर बार होगा 2 डिजिट्स पे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बार होगा 3 डिजिट्स पे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से. हियर वी हैव बार ऑन 1 डिजिट मीन्स ऑन 6, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10. x multiplied by 10 is 10x and 0.66666 multiplied by 10 is 6.66666 and so on to we get equation 2. Now we have to subtract equation 1 from equation 2. So equation 2 minus equation 1 is 10x minus x, which is equal to right side of equation 2 is 6.66666 minus equation right side of equation 1 is 0.66666 and so on to. Here 10x minus x is 9x, which is equal to, when we subtract these two numbers we get 6. 6 minus 6.66666 minus 0.66666 is equal to 6. So x is equal to 6 by 9. When we cut it by 3 we get 2 by 3. So value of x is equal to 2 by 3. We have given decimal expansion and we have converted it into rational number. So x is equal to 2 by 3. Now second part of this question is 0.47 bar. Here we have 2 digits after decimal. डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, लेकिन बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है. अगर हमारे पास ऐसे हो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो, बार 1 के ऊपर हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार तो क्योंकि बार हमारा 1 डिजिट पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो एक बार इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखते हैं हमने क्या किया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार.
which is equal to 0.477777, equation 1. Now we multiply this equation 1 by 10, then we get 10x is equal to 0.477 multiplied by 10 is 4.777. आपका जो डेसिमल है जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट साइड में एक स्टेप आगे हो जाएगा. 0.4 की जगह पे क्या रह गया? 4.777. इट इज़ इक्वेशन 2. नाउ वी वांट 100x. अब हमें 100 चाहिए तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या इक्वेशन 1 को डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर ले, बात एक ही है. जब हमने इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट 100x इज इक्वल टू 47.777. वी गॉट इक्वेशन 3. नाउ वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. So 100x minus 10x is equal to 47.777 minus 4.777. So here in left hand side we get 90x is equal to 43. X is equal to 43 by 90. So it is in the form of P by Q, where P is equal to 43 and Q is equal to 90 and Q is not equal to 0 also, means we have converted decimal expansion into rational number P by Q, where Q is not equal to 0. Now question number 4 is same as first part of question number 3. जो आपका question number 4 है 0.99999, it can be written as 0.9 bar. और ये क्वेश्चन आपका जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल उसके से सेम है. Now I am doing question number 5. Question number 5 is what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17. Perform the division to check your answer. Means we have to find the decimal expansion of 1 by 17. Decimal expansion के बाद हमें ये बताना है कि कितने digits के बाद हमारा जो division है, जो हमारा decimal expansion है वो repeat हो रहा है. Means repeating block में कितने digits हैं, right? So simply here we divide 1 by 17. 1.000 लगाते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे. जब आप डिवाइड करते जा रहे हैं तो आपने देखा कि हमारे बहुत सारे स्टेप्स के बाद हमारा रिमाइंडर जो है 1 आया. मीन्स कि जितने डिजिट्स जो ये हमारे आ चुके हैं ये फिर से यहाँ से रिपीट होंगे. सो 1 by 17 कैन बी रिटन एज 0.0588235294117647. ये इसके ऊपर लगाया हमने बार, क्योंकि इतने डिजिट्स जो हैं हमारे फिर से रिपीट होंगे. अब हमने देखा कि ये कितने डिजिट हैं, जब हम काउंट करेंगे तो ये हैं हमारे 16 डिजिट्स. सो द रिपीटिंग ब्लॉक हैज़ 16 डिजिट्स. जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स हैं? 16. Now question number 7 is write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Recurring means non-repeating. अभी तक हमने देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो रही थी, जिसका डिवीज़न में आपका जहाँ पर रिमाइंडर 0 है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और जहाँ डिवीज़न 0 नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. जब नॉन टर्मिनेटिंग आता है फिर हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो क्वोशंट है क्या उसके डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम कहते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग भी बोल देते हैं हम इसे. लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो डेसिमल एक्सपेंशन लेने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी डिवीज़न ख़त्म भी नहीं हो रही और वो रिपीट भी नहीं हो रही. तो इस तरह के जो हमारे नंबर्स हैं वो किस तरह से होंगे, क्या उनकी फॉर्म रहती है वो मैं बताती हूँ आपको. देखिए तो मैंने लिया है देयर 3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर. अब देखो क्या किया मैंने, 0.01 001 001 4 times 01 5 times 01 6 times 01 7 times 01 एंड सो ऑन टू. ये एंड सो ऑन टू मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, आगे चलेगा. नॉन रेकरिंग है कि आपका कोई भी ब्लॉक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा. अब आप कहेंगे कि 1 रिपीट हो रहा है, 0 हो रहा है, लेकिन ये पूरा सिमेट्री से रिपीट नहीं हो रहा. मीन्स पहले पॉइंट के बाद एक 0 है, फिर 1 है,
फिर 2 ज़ीरोज़ हैं फिर 1 है, फिर 3 ज़ीरोज़ है फिर 1 है, सिमिट्री से रेपिटिशन नहीं है। ओके, तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, राइट। एक दो और एग्जांपल लेते हैं हम। नेक्स्ट लिया मैंने 0.02, 002, 002, 4 टाइम्स 02, 5 टाइम्स 02 एंड सो ऑन टू। थर्ड मैंने एग्जांपल ले लिया 7.10, 100, 2 000, 3 4 टाइम्स 0, 4 5 टाइम्स 0 एंड सो ऑन टू, कि एक तो वो नंबर ख़त्म ना हो और दूसरा उसमें कोई सिमेट्री ना हो, रेपिटिशन की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, ठीक है, वो रिपीट ना हो, मतलब कोई भी डिजिट जो है वो आता रहे और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज़ फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स। ये जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिन नंबर्स की, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो हमें अब 8th क्वेश्चन में 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। और रैशनल नंबर्स कौन से हैं? 5/7 एंड 9/11। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज 2 नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 इज 0.714285 बार and decimal expansion of 9/11 is 0.81 bar. There are infinite number of irrational numbers between these two numbers. किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर सो मैनी इरेशनल नंबर्स, वी मे चूज़ ओनली 3। हम हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं। अब देने किस तरह से है ये देखिए, हमें नंबर्स लेने हैं 0.71 और 0.81 के बीच में, 0.71 और 0.81 के बीच में। कैसे नंबर्स चाहिए? इरेशनल। इरेशनल की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मीन्स वो नंबर्स लेने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में लिए थे, 0.71 और 0.81 के बीच में। तो हमने लिए 0.72 से स्टार्ट, 0.73 से स्टार्ट और 0.74 से स्टार्ट। सिमिट्री नहीं बनानी तो हमारा पहला नंबर कैसा रहेगा? 0.72, 722, 722, 7 4 टाइम्स 2 एंड सो ऑन टू। नेक्स्ट 0.73, 733, 7 3 टाइम्स 3, 7 4 टाइम्स 3 एंड सो ऑन टू। आगे कैसे लें? 0.74, 744, 7 3 टाइम्स 4, 7 4 टाइम्स 4 एंड सो ऑन टू। आप किसी भी तरह के नंबर्स लीजिए 0.71 और 0.81 के बीच में हों और वो इरेशनल नंबर्स हों, मीन्स उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होनी चाहिए, राइट। Now before starting question number 9, first of all look at this tree. Here I have written real numbers. अब हमारे जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में 2 नंबर्स आते हैं, कौन से? रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स रियल नंबर इज़ अ सेट इन विच वी गॉट 2 नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? जैसे 2 है, 3/5 है, 7/9 है, ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका अंडर रूट हमें पूरा नहीं पता, मीन्स √2, √3, √5 एंड सो ऑन टू। अब जो इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो इन दोनों नंबर्स की कैसे होती है? रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह की होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी, यानी जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा और क्वोशंट में कुछ ब्लॉक या कुछ डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगे, राइट। ये हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर्स की। और इरेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ख़त्म भी नहीं होगा, यानी कुछ रिमाइंडर बचेगा, 0 नहीं आएगा। और नॉन रिपीटिंग, आपका कोई भी ब्लॉक जो है वो रिपीट नहीं होगा, राइट। ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
In question number 9, we have to classify the following numbers as rational or irrational. Here we have given 5 numbers and we have to tell whether these numbers are rational or irrational. First part is under root 23. 23 का अगर हम अंडर रूट फाइंड आउट करें तो पॉइंट्स में आता है, पूरा पूरा नहीं आता, तो ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर. जिसका अंडर रूट हमें पूरा पूरा ना मालूम हो वो इरेशनल नंबर है. नेक्स्ट इज 225 अंडर रूट. वी कैन फाइंड द अंडर रूट ऑफ 225 विच इज इक्वल टू 15. 15 आता है तो 15 क्या है? 15 इज अ रैशनल नंबर. 15 एक रैशनल नंबर है. नेक्स्ट इज 0.3796. बस पॉइंट के बाद आगे नहीं जा रहा. पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं. इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसी है? टर्मिनेटिंग. और टर्मिनेटिंग वाला किस में जा रहा है? आप ट्री में देखिए, रैशनल नंबर्स में. तो ये हमारा रैशनल नंबर है. नेक्स्ट है 7.478 सो ऑन टू. मीन्स ब्लॉक ऑफ 3 डिजिट्स 478 इज repeating. So this can be written as 7.478 bar. Means it is non-terminating but repeating. अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किस में आ रहा है? रैशनल नंबर में. तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है. लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट 1.10 100 100 100 14 टाइम्स 0 15 टाइम्स 0 एंड सो ऑन टू. ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया. अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो है वो कौन से नंबर्स हैं? किनकी डेसिमल एक्सपेंशन है? ये इरेशनल नंबर्स की. तो ये हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है इरेशनल नंबर. So here we have completed exercise 1.3. In my next video I will start exercise 1.4. So if you like my videos, please subscribe my channel, press on like button and turn on notification bell and share this video maximum. Thanks for watching.